प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से देश में एजुकेशन सिस्टम को एक नया आयाम देने का प्रयास किया है और उसमें सफलता भी मिलती जा रही है और उसी को लेकर जो विदेशी हैं वो भी अब भारत के एजुकेशन सिस्टम के मुरीद नजर आ रहे हैं। मेरठ में आप ये देखिए कि यूरोप की कई कंट्री हैं, जैसे अजरबैजान है, पोलैंड है, तुर्की है, जो तमाम फॉरेनर्स हैं वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है वो कितना बदला है, क्या क्या यहाँ बेहतर चीज़ें हुई हैं, यूरोप में किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम है उसका यहाँ कैसे आदान प्रदान किया जा सकता है और दोनों एक तरीके से एक दूसरे को ये समझ सकें कि बदलते वक्त में किस तरह के एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरत है, कितना वो बदल रहा है और किस तरीके से जो कहा जा रहा है कि रोजगार पैदा करने वाले बनिए और उस सिस्टम में किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो बदलती नजर आ रही हैं। इन्हीं लोगों से एक एक करके बातचीत करूंगा और ये जानने की भी कोशिश करूंगा कि आखिर यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को लेकर वो किस तरीके से उत्साहित नजर आ रहे हैं। हेलो मैम। Hello, वेयर आर यू फ्रॉम? I'm from Azerbaijan. अजरबैजान। हाउ डू यू फील लाइक दैट? I'm so happy. I'm truly grateful for the organizers of this event. I'm so happy to be here, to see your culture, to observe students' presentation. Thank you. What is your purpose for coming here? Educational purpose we came here at the group to learn the culture, different culture, to explore India. What difference between in your education system and India? Difference. There are total great difference between our cultures and yours. That's why it's interesting me to observe it. Where are you from? I'm from Poland. What is your purpose between here? So I'm here to see the culture, to see your schools, how you work, how the teachers work, and I'd like to inspire and take something for me with me to Poland, to Europe. System is between here and your education system. So it's our first day, our first time. So I still don't know everything about your system, but the experience that we had today was beautiful. We saw your students dancing, and that was beautiful, excellent, amazing. How do you feel like that in a school? How do I feel in school like this one? So yeah, the great school. Like there was everything that should be, and everyone. The most important thing, everyone is so hospitable, so nice, so kind. Where are you from, ma'am? I'm from Turkey. Hello, India. It is great to be here. Actually, we are here as we are awarded thanks to AKS education because we are recognized thanks to them. And also they offer us such a beautiful journey. It was amazing starting from the very early morning because we started today with a very different ritual. That's your daily ritual. It was amazing for us. It's like a yoga and meditation. I got amazed, and also all the staff, teachers and headmasters, students, they are so welcomed us warmly. I was amazed, and I am so happy to be here. It was a great adventure. I am going to my country full of adventure and full of information about India. It is greater than great. Thank you. Okay. Where are you from? Turkey. How do you feel like that? Amazing. I am not English. Talk. Okay. Where are you from? Hello, I am from Azerbaijan. We came here because we were recognized as awardees 2024. It is my second time. Acha, you'll come second time. Yes, it is my second time to coming to India. We get acquainted with Satyakam school. It was great. Students were great, and as the principal said, they connected old values and new values. It is really just we can see and we can observe it. It's students' attitudes, students' behaviors. They are great. We are amazed. Really, very good. Thank you for very much. Okay. Thank you. सर आपसे जानना चाहूँगा जो इस तरह के देखता हूँ कि जो डेलीगेशन आते हैं फॉरेन से, एक मकसद थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से भी लोगों ने बताया कि बहुत अच्छा भी यहाँ लगा, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में तमाम ज़मीन आसमान का अंतर है, लेकिन कह रहे हैं कि भाई हाँ यहाँ चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं।
बिल्कुल, जो लगभग 120 कंट्रीज़ में हम काम करते हैं। अभी भी हमारा जो डेलीगेशन आया हुआ है 40 कंट्रीज़ से आया हुआ है, वो अलग-अलग स्कूलों में विज़िट कर रहे हैं। तो सत्यकाम एक स्कूल है जिसमें हमने विज़िट की है और यहाँ 4 से 5 कंट्री से लगभग 12 डेलीगेट्स आए हुए हैं। जो सबसे इनको ज़्यादा यहाँ जो इनको अट्रैक्ट करता है, जो अट्रैक्ट होता है, यहाँ का हमारा जो इन्होंने आपको बताया भी, जैसे इन्होंने सुबह से यज्ञ किया, उसके बाद योगा किया, उसके बाद यहाँ की जो संस्कृति है इनको बहुत अट्रैक्ट करती है। कई बार तो इनको हमारा 3 दिन का ग्रुप ट्रिप होता है तो कई बार 6 दिन भी उसको कन्वर्ट करते हैं। बस इतना ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं ये, क्योंकि हमारा जो कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, वो कैसे आपको एकदम से अंदर से पवित्र करती है, कैसे आपको काम करती है, इससे बहुत अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि वहाँ और हमारे कंट्री में क्या डिफरेंस है, हम लोग संस्कृति को साथ लेके चलते हैं। उनका वही मॉडर्न है, लेकिन वो उनके खुला है, उसमें खुलापन है। मतलब आपका करिकुलम की बात करूँ, मैं फिनलैंड की बात करूँ या इन कंट्रीज़ की बात करूँ, वहाँ का करिकुलम क्या है कि एक टीचर को आज़ादी है, वो कैसे अपने आप बच्चों को पढ़ा सकता है। हमारी संस्कृति में, हमारे एजुकेशन सिस्टम भी नहीं है। हम, अगर आपका जो बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, UP बोर्ड है, आप बंधे हुए, उससे बाहर नहीं जा सकते। तो उनको ये आज़ादी है, ये डिफरेंस है बहुत बड़ा। अच्छा, एक चीज़ है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीज़ें बदलने की कोशिश की है, और आप देख रहे हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा इस समय, लोग इसके मुरीद हो रहे हैं। पहले यहाँ का यूथ सोचता था कि मुझे बाहर जॉब करने जाना है, लेकिन अब वो यहीं जॉब क्रिएटर बनना है, अपनी ताकत उसके अंदर आ गया और भी चीज़ें बदल रही हैं। आपको लग रहा है कि उस चीज़ के लोग मुरीद हैं और वो जानना चाहते हैं कि कैसे एकदम इतना सिस्टम। देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई है, जो जैसे मोदी जी का जो नया सिस्टम एजुकेशन सिस्टम बता रहे हैं, वो सब इससे अट्रैक्शन है, इनको अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन जब तक इनको देखेंगे नहीं, जब तक इसको सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, वो नहीं उसको। अब ये लोग आते हैं तो उससे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं जाके। ऐसा नहीं कि हम लोग ही उनका चीज़ें लेके आ रहे हैं, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी ये लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वहाँ। तो जैसे जैसे देखो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, मोदी जी ने जो हमारी सरकार कर रही है, इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। आपको लग रहा है कि दोनों सिस्टम का, एजुकेशन सिस्टम का आदान प्रदान होना चाहिए, हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा, हो भी रहा है। आप कभी अगर यूरोपियन कंट्रीज़ में विजिट करेंगे, अभी मैं रिसेंटली जापान जाके आया हूँ, लगभग 25 से 30 साल पहले से भी ये सिस्टम, हमारे जो टीचर्स थे एक्सचेंज में वहाँ जाते थे, वहाँ के बच्चे और टीचर हमारे इंडिया में भी आते हैं। सिमिलरली फिनलैंड से, जर्मनी से एक्सचेंज होता है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो हमारी कंपनी कोशिश कर रही है कि जितने से ज़्यादा स्कूल्स को हम इसमें इन्वॉल्व कर सकें, और ये बहुत अच्छा प्रयास है। मेरठ में सत्यकाम ने जो किया है, इसके लिए ब्रॉड माइंडेड होना बहुत जरूरी है। अगर आपका स्कूल का ओनर, स्कूल का प्रिंसिपल ब्रॉड माइंडेड है, तब ये कर पाता है। अनुज सर हैं हमारे साथ, सत्यकाम स्कूल के ऑनर हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि देख रहे हैं कि सब बड़ा मुरीद नज़र आए हैं, बड़ी तारीफ कर रहे हैं। हाँ, अच्छा लगा। देखो, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। इन लोगों को भी एक चेंज तो दिखाई दिया ना कि ये सिस्टम भी हो सकता है, या इंडियन वैदिक वैल्यूज में ये सब चीज़ें हैं। तो अब हमारी जो गुरुकुल परंपरा थी पुरानी, वो इसलिए तो थी कि हम अपनी जड़ों से जुड़े हुए थे। जो इंडिया की वैदिक वैल्यूज थी, उनसे हम जुड़े हुए थे। तो हम लोगों को ये चीज़ इन लोगों ने भी जानी। अब विश्व गुरु जब था भारत, वो इसलिए ही तो था अपने एजुकेशन सिस्टम की वजह से। हम उससे डेविएट हो गए। लेट्स ब्रिंग इट अगेन टू द सेम ट्रैक। हम उसी तरफ ला रहे हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्दी भारत फिर से एक विश्व गुरु बनने वाला है, और हम विश्व को बताएंगे कि क्या इंडियन वैदिक वैल्यूज हैं। और कहीं ना कहीं ये तभी तो होगा जब हम इन लोगों को दिखाएंगे कि हम ये सब चीज़ें करते हैं, हमारे सिस्टम में ये सब चीज़ें हैं। हम पर्सनैलिटी पर, जो इनर सेल्फ है, उस पर ज़्यादा काम करते हैं बनस्पत अपनी एक्सटर्नल बॉडी के। तो वही हमारी स्ट्रेंथ है और वही हम इन लोगों को बताने वाले हैं। हम लोगों ने मेडिटेशन किया, इन सब लोगों ने मेडिटेशन किया, बड़ा अच्छा लगा। हाँ। स्कूल की प्रिंसिपल हैं रश्मि शर्मा मैम। एक चीज़ जानना चाहूँगा कि अभी सर एक चीज़ कह रहे थे कि भाई अगर टीचर ब्रॉड माइंडेड हो गए तो चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलेंगी, और जिस तरीके से इन लोगों को देखा कि ऐसा लग रहा है जैसे परिवार के सदस्य हों, तो आपको लग रहा है कि चीज़ें बहुत बदल रही हैं? सर, बिल्कुल तेज़ी से बदल रही हैं चीज़ें, क्योंकि हम लोग जो है सत्यकाम में ये चाहते हैं कि गुरुकुल एजुकेशन से लेकर हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ चीज़ों को लेकर चलें। तो जैसे आज ये लोग आए हैं, तो ये एक इसमें बड़ा स्टेप है कि हमने आगे की मॉडर्न कल्चर के साथ भी बच्चों को जोड़ा है। तो गुरुकुल एजुकेशन के साथ तो हम लेकर ही चलते हैं, जैसे मेडिटेशन है, यज्ञ है। तो इन लोगों ने आज ये देखा कि मेडिटेशन और यज्ञ करके इनको बहुत अच्छा फील हुआ कि इंडियन वैल्यूज़ कितनी इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही हमारे बच्चों को लगा कि मॉडर्न वैल्यूज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। और सत्यकाम तो है ही अमालगेशन, कि दोनों को जोड़कर ही चलता है, एंड दिस इज़ व्हाट सत्यकाम इज़। तो आज तो बहुत ही अच्छा लगा सर, मज़ा आ गया, बहुत अच्छा लगा। तो देखिए किस तरीके से कहते हैं भी ना कि संस्कृति का आदान प्रदान और शिक्षा का आदान प्रदान होता रहे तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बदल जाती हैं। लेकिन अब जो हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम है वो इस तरीके का बनता जा रहा है कि जो विदेशी हैं वो भी इसके मुरीद नज़र आ रहे हैं, और इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
एक बड़ी सोच भी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।